So as I am saying that when you are picking up projects, one thing is very important. When you are collecting data, and we'll come to the report we were discussing yesterday as well, just to make sure that Idris was satisfied that about PEX to sales ratios and everything. So there's another presentation, can you open that? So I had a lot of reports, so I really had to pick and choose to make sure that how can be have a track in a way. So there are the HR performance metrics, so they are listed all here. So we can give you the soft copy of the printouts. Having said that, can anybody start reading it for me? For example, you can see 11 here. Can anybody start reading from this side corner? सबसे पहला कौन सा है? Total revenue over total number of employees. Okay. Number 2, revenue per FTE. Total revenue, total number of FTE. Hold it. Then we can come to the next. Profit per employee. Total profit, total number of employees. Divided by total number of Total employees. number of Right. employees. Fourth, Yes. profit per FTE. Or total profit divided by total number of FTE. Right. Next. Overtime per employee. Hours of overtime divided by total number of hours, contractual hours plus overtime per period. Labor cost per employee. Total labor cost divided by total number of employees. Okay. And labor cost per FTE. Total labor cost divided by FTE. Labor cost percentage of revenue. Total labor cost divided by organizational revenue. Labor cost percentage of total expenses. Total labor cost divided by total organizational expenses. Absence rate. Number of absence days divided by total number of working days. Hold it. So whatever you are reading, so are you understanding that these are all important HR metrics? और इसमें कोई absolute science कोई बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, कोई बहुत calculation है, बहुत कोई heavy data, इस किस्म की कोई चीज़. So these matrices are all available. They are all there. When you want to find out, इसका एक handout we will give it to you on the safe side. But this is a good enough list to know कि किस किस्म की calculations आप कर सकते हैं. Based on जी. Formulas are हाँ, these are simple formulas. This is just simple division. In a sense, it's nothing more than that. So there's no other calculation involved. The thing which will matter eventually is the quality of the data. आगे आ जाइए 11 पढ़ना था आपने पहले. Absence rate per manager divided by department. Number of absence days per unit divided by total number of working days per unit. आपको दृश्य समझ आ रहा है कि इसमें हम क्या करेंगे, हम डिपार्टमेंट के एक जो है हर एक मैनेजर को लेकर टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज उसके जो होंगे, जितने एब्सेंट हो गए और कितने टोटल उन्होंने किया है. फॉर एग्जांपल मार्केटिंग की बात कर लेते हैं, तो मार्केटिंग के हम जो है मार्केटिंग के एब्सेंट्स डेज उठा लेंगे और फिर उसके टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज उठा लेंगे और मार्केटिंग के, और वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट. हाँ जी, आप ही बताइए. Training expenses per employee. Training expenses divided by number of employees. ठीक है. आगे. Training efficiency. Training expenses per employee divided by training effectiveness. 15th is voluntarily turnover rate. Voluntarily terminates during the period divided by employees at the beginning of the period. ठीक है. अच्छा, ये जो है ना टर्नओवर रेट है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला. ठीक है. वो आपको समझ में आया यहाँ पे? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दैट टर्नओवर रेट क्या है. सो फॉर एग्जांपल अगर आपका, और ये भी है द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम. HR एनालिटिक्स में जो टाइम का पीरियड का कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप मेजर कर रहे हैं तो आप किस लिहाज से कर रहे हैं. आर यू मेजरिंग फॉर अ स्पेसिफिक, मतलब यहाँ पे लगते हैं या आप यूज़ करते हैं मंथ टू डेट MTD. आप टुडे तो अमूमन नहीं होता है, बट ऑफ कोर्स अगर एज टुडे भी लिख दें तो वो कोई बुराई नहीं है. मंथ टू डेट मीन्स टुडे, एंड देन ईयर टू डेट in a way. These are different terms which are used to describe today. In the context of the year उठा सकते हैं, in the context of month उठा सकते हैं. जिस तरह भी analytics रन के, the spectrum is quite large, but you have to see कि आप किस किस्म के periods को compare करना चाह रहे हैं. और उसमें आगे मैं वो आपको दिखाती हूँ calculations में कि जो भी आप pick and choose करना चाहें, it's like a big menu.
It's like a big menu and you can prepare something according to your own desire, whichever you want to present. So आपने उसके लिहाज से उठाना है और किस किस पीरियड को, फॉर एग्जांपल आपने 6 months को करना है which is called the biannual period, या आपने क्वार्टर्स को करना है, ठीक है. You want to 3 months करना है और you want to do the quarters. और ये चीज़ें इस चीज़ में मैटर करती हैं, ऑल दीज एनालिटिक्स मैटर कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है, क्योंकि सेल्स उस लिहाज से लॉक हो रही होती है ना. आपका फाइनेंशियल ईयर मैटर्स अ लॉट. जून टू जून का है, दिसंबर टू जनवरी का है, उसके लिहाज से मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जितनी भी HR रिपोर्ट्स हैं यू विल हैव टू बेंचमार्क देम अकॉर्डिंगली. आपने उसके लिहाज से ही रखनी होती है. अगर जून टू जून का है तो आपने फिर उसके लिहाज से आपका 1 जुलाई जो होगा वो आपका HR का आप कहेंगे कि इम्पैक्ट शुरू होता है और उस तरह की रिपोर्ट आपकी रिकनसाइल करेगी टू योर फाइनेंशियल ईयर. अगर आपका कैलेंडर ईयर है और आपका फाइनेंशियल ईयर इज़ ऑल्सो 1 जनवरी, तो देन यू विल मेक रिपोर्ट्स अकॉर्डिंगली मोस्ट ऑफ द टाइम अकॉर्डिंग टू 1 जनवरी. डिपेंड्स. गवर्नमेंट में, बैंक्स में जून टू जून भी चल रहा होता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री है ना. बैंक्स में जून टू जून चलता है और जो बहुत सी कॉरपोरेशंस में भी जून टू जून चलता है समटाइम्स, क्योंकि वो टैक्सेशन ईयर का भी डिफरेंस होता है. दे वांट टू गिव इंक्रीमेंट्स इन जुलाई. बहुत सी ऐसी कंपनीज़ के साथ हम काम करते हैं. द अदर वंस आर विच वांट टू गो टू द कैलेंडर ईयर. और बेसिकली जो मल्टीनेशनल्स हैं या जिनका एक्सपोर्ट्स के काम है वो समटाइम्स कैलेंडर ईयर्स. उसकी वजह ये होती है कि दे वांट टू बुक द सेल्स फॉर द क्रिसमस, दे वांट टू बुक द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू ईयर. तो सारी शॉपिंग हो जाती है दिसंबर में जाकर. तो जब आपकी P&L निकलती है तो दैट गिव्स अ वेरी गुड शेप. एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है, कस्टमर्स पे भी आ रहा होता है, आपकी नई प्रोडक्ट्स पहुंचती हैं, सेल्स हाई शो होती हैं. सो दैट्स वाई दे नेवर प्रेफर कि जून टू जून है, वो हमेशा दिसंबर टू जनवरी लॉक कराते हैं अपना ईयर ना. सो दैट रियली डिपेंड्स कि कौन से ईयर है. बट हैविंग सेड दैट, आपके जितने भी डिसीजंस हैं, ऑल HR डिसीजंस, इसके बारे में आगे भी बात करेंगे, विल बी बेसिकली रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस. और यू कैन से दैट, आपको मैं एक बात बताऊं कि आपको सारे करियर में यूँ लगेगा कि यू आर समबडी हु इज़ अंडर फाइनेंस. बट एज आई सेड यस्टरडे, डू यू नो दैट who is a CFO? CFO is a designation? Chief of Finance, right? Yeah, but CFO is a designation or what? CFO is a title? It's a title, na? Yeah, but who is he as a person is a human being. So what comes first for any person is being human. ठीक है. So who stands supreme? Humans, right? So it means कि जब हम उन बातों पे आते हैं, despite all the analytics and the financials जिसके हम बात करेंगे, you have to be super sensitive about, क्योंकि कल हमने बिजनेस की बात की कि बिजनेस के बगैर आपकी कैश फ्लो, आपके नेट प्रॉफिट जनरेशन के बगैर बाकी सारी बातें, हमने 2 चीज़ें कल और डिस्कस की, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड द अदर वन वाज, याद करें ग्रीन मार्कर में था, द वन वाज कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, द सेकंड वन वाज रेवेन्यू जनरेशन. वेरी गुड. द अदर वन इज़, एक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है, दूसरा है यह है कि प्रॉफिट जनरेशन या रेवेन्यू जनरेशन है. 2 मेजर हैं जो कॉन्सेप्ट्स आपने लेके जाने हैं अब 3 एनालिटिक्स में. अच्छा जी, अब फाइनेंस के जो आप शीट्स में आप हमेशा देख रहे होते हैं, अब आपकी जो स्टेटमेंट्स होती है, प्रॉफिट एंड लॉस होती है, बैलेंस शीट होती है, सुना होगा ना आपने, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, आपकी इनकम स्टेटमेंट होती है. गुड, ठीक है ना. मेजर 4-5, हाँ जी, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट. मेजर 4 इन स्टेटमेंट्स को, मेजर जो प्राइम स्टेटमेंट्स होती है ना, इनको कंसिडर किया जाता है प्राइम स्टेटमेंट. ऐसे तो देयर इज़ एंड टू एनालिटिक्स. सिमिलर एज द केस जब HR की बात आती है तो HR में जिन चीज़ों को, जिसको मैं कह रही थी ना, कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम, जो टर्नओवर है एम्प्लॉयज़ की, एक हमने कल बात की थी हेड काउंट की, हेड काउंट कैलकुलेशन. दूसरी हमने कही थी तो हेड काउंट से रिलेटेड कौन सी थी, जो 0.5 का डिस्कशन हुई थी, एक टर्म यूज़ हुई थी हेड काउंट के साथ. वेरी गुड. FTE में हमने बात की थी कि अगर आपका हेड काउंट 100 होगा तो आपके FTE 96.5 भी हो सकते हैं. ये बात हुई थी ना, बिकॉज FTE इज़ डिफरेंट दैन हेड काउंट. ठीक है. तो जो स्टैट्स होते हैं, जब HR की बात होती है तो सबसे बड़ा जो स्टैट होता है वो आपका हेड काउंट या FTE होता है, या उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं, जिसके लिए हेड काउंट प्लस FTE को सबसे ऊपर रखा जाता है. मतलब हर अक्सर डैशबोर्ड्स में आपको हायरिंग या हेड काउंट या FTE स्टेटस जो है, हर एनालिटिक्स में आप सबसे पहले उनको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं.
दूसरा आप कैलकुलेट करना शुरू करते हैं अमूमन, अगर ये हेड काउंट है तो आप अपने एक्सपेंसेस को लाते हैं अमूमन ऐसे पिक्चर और अचीवमेंट्स को लाते हैं। फिर तीसरा आप जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लाते हैं दैट इज़ द लीवर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और वो ये होता है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम में एवरेज नंबर, वैसे इसमें लिखा भी हुआ है ऑफ लीवर्स, लेकिन लिख लीजिए अगर इफ़ यू वांट टू, इन एन पीरियड, मतलब एनी पीरियड into 100 and average number of employees in that period, employees in n period, ठीक है। एन का मतलब ये है कि कोई भी कॉन्टेक्स्ट है कि वो आपका के पर मंथ था या पर ईयर था, ठीक है। अगर पर ईयर में आपने उसको एवरेज ले हैं, आपके एवरेज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, ये सॉरी ये है, ये नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है और ये एवरेज होगी, ठीक है। उसमें आप एवरेज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ उठा लें, स्पेशली जब आप एनुअल करेंगे तो, क्योंकि मंथली में एक महीने में आपके 6 जाएंगे, अगले महीने में 8 जाएंगे और तीसरे में 10 जाएंगे। व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग तो फिर आप उसका एवरेज उठा के यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ लीवर्स, आपका एनुअल टर्नओवर जो है एट्रिशन का आपने निकालना है, ठीक है। तो आपने अपना ये जो लीवर्स का काउंट है और जो आपका ज्वाइनिंग का काउंट है वो मैच हो गया, और उसके लिहाज से आपकी जो फर्स्ट 10 रिपोर्ट्स, जैसे हमने कहा परफॉर्मेंस मीट्रिक्स हैं, और वो निकलना शुरू हो गए। बाकी कुछ ऐसे मीट्रिक्स हैं विच आर लाइक आइसिंग ऑन द केक, जैसे हमने कल भी बात की थी कि इनवॉलंटरी टर्नओवर रेट, कल भी मैंने आप लोगों को उसमें दिखाया था, वो हैंड आउट वो काइंडली इनको भी दे दीजिएगा, आप आ जाइए। उसमें यह है, उसमें इम्पॉर्टेंट बात है जिसमें डिसमिसल की बात हुई थी, दैट इज़ वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी, वेरी गुड, इनवॉलंटरी। सो उसमें यह है कि आपने इनवॉलंटरी, फिर हमने एक रिग्रेटेड लॉस की टर्म यूज़ की थी। कल जो मैंने आपको सैम्पल दिखाया है ये उसी की डेफिनेशंस है, बट आई हैव शोन यू द न्यूमेरिक्स, द सैम्पल्स, द एक्चुअल रिपोर्ट जो ऑर्गेनाइजेशन ने जनरेट किया है। तो आपने ये जो टर्नओवर रेट ऑफ टैलेंट मीन्स द टर्नओवर ऑफ द रिग्रेटेड लॉस, आपको एंड में नज़र आ रहा होगा उसका ब्रेक डाउन कि रिग्रेटेड लॉस का टर्नओवर इज़ मच लेस देन एज़ कम्पेयर टू द टोटल टर्नओवर, क्योंकि टोटल टर्नओवर में आपका इनवॉलंटरी रेट भी पार्क हो जाता है जाके, विच यू डू नॉट वांट टू फोकस ऑन एज अ HR स्ट्रैटेजी। देन वी कम ऑफ द टर्नओवर रेट पर मैनेजर पर डिपार्टमेंट, और आपने फिर अगर किसी मैनेजर का देखते हैं, कल भी बात हुई कि किस डिपार्टमेंट का ज़्यादा हो रहा है, आर ऑपरेशंस पीपल टू टफ या इज ऑपरेशन जॉब टू टफ। So there is a lot of depth into the data। आगे इसके एग्जांपल्स मैं दिखाती हूँ कि आप फिर then you have to analyze as a HR person, take yourself out of that picture and think, इस डिपार्टमेंट से बहुत लोग जा रहे हैं, क्या इसका मैनेजर में कोई मसला है या इस डिपार्टमेंट की जॉब्स में कोई मसला है, और देन इट विल लीड टू दैट जॉब एनालिसिस ऑल्सो। हो सकता है कि जो जॉब लोड हो वो ना कर पा रहा हो, और हो सकता है कि उसका जो सुपरवाइज़र है, द सुपरवाइज़र इज़ बीइंग हॉस्टाइल, बट अनलेस अनटिल यू हैव द एक्सेस टू दिस नंबर, ये नंबर होगा यू विल बिल्ड, तो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, और अगर नहीं होगी तो वो परसेप्शन कहलाती है। और आई एम टेलिंग यू कि इंटरेस्टिंगली जब आप अपने नंबर्स खोलेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के स्टडी कीजिएगा, एंड इट इज़ वेरी मच एडवाइजेबल फॉर यू टू हैव अ वेरी स्टीप वर्टिकल ग्रोथ, एज आई एम टेलिंग यू 6 months में ट्राई करें, एंड आई एम हेयर, 2-4 रिपोर्ट्स बनाएं और पढ़ें और उसके मतलब किसी से बात करें, आपका जो लेवल ऑफ लिटरेसी है वो इतना ज़्यादा लगेगा, लेवल ऑफ अवेयरनेस और बिजनेस एक्यूमेन जो है वो इतना ज़्यादा सबको फील होगा, दैट यू विल सी दैट पीपल्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स यू विल चेंज ड्यू टू दिस एनालिटिक्स, बिकॉज दे विल नो कि ये जो बात कर रहा है उसके पीछे डेटा है। और अगर वो कहेंगे कि वाई डू यू फील, एंड वी वर ऑल्सो सरप्राइज बिकॉज सम ऑफ द मैनेजर्स आर वेरी गुड विद द टॉप मैनेजमेंट। आपका जो बेस्ट फ्रेंड होगा एज अ लाइन मैनेजर, जो आके आपके साथ बैठ के चाय पीता होगा, बातें करता होगा, सीम्स लाइक अ गुड पर्सन, may be very hostile with his employees, and you cannot know that, and you should not try to based upon क्योंकि मेरे साथ इसके ताल्लुकात अच्छे हैं, ये हो सकता है CEO के साथ अच्छे हैं और CEO कह रहा हो कि इसको ये प्रमोट कर दो और ये बहुत अच्छा इंसान है, of course, and you go to the CEO and say नहीं ये अच्छा इंसान नहीं है, but that's a descriptive, हमने वो कल
आपने प्रिस्क्रिप्टिव एलिमेंट तक कैसे पहुंचना है मैच्योर मॉडल में एनालिटिक्स के, कि जब आप कहेंगे प्रिस्क्रिप्टिव तक इसलिए पहुंचेंगे, आप उसको दिखाएंगे कि सर यू आर राइट बट ही इज़ वेरी गुड विद यू बट लुक एट हिज डिपार्टमेंट, और उसके भी टूल्स हैं और वो डेटा वहाँ से आएगा। जैसे हमने रिग्रेटेड लॉस और एग्जिट इंटरव्यूज़ का निकाला, दैट पीपल आर लीविंग हिज, आप उसका एग्जिट इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं कि नहीं करते, आपका एग्जिट इंटरव्यू ऐसा बना हुआ है कि जो एनालिटिक्स में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं होता, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनी टूल यू आर फ्लोटिंग इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरव्यू एवेल्युएशन की बात करते हैं, इंटरव्यू एवेल्युएशन हर कंपनी में होती है ना, एक फॉर्म होता है और कुछ ना कुछ बना ही होता है, कोई कहानियाँ बनी होती हैं, मतलब एटलीस्ट क्योंकि कहीं पे वो लगाना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अक्सर बहुत से लोग उसको यूज़ नहीं करते। द अदर थिंग इज़ हैविंग अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और अक्सर आपने देखे लाइन मैनेजर सिर्फ टिक कर रहे होते हैं कि हायर, उनके पास टाइम नहीं होता है। और उसमें आई वुड से एक तो 1 पेजर से ज़्यादा दुनिया में कोई फॉर्म नहीं होना चाहिए। और अगर इसको नोट कर लीजिए, इफ़ योर फॉर्म इज़ टू मच, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड यू आर वेस्टिंग द लाइन मैनेजर्स टाइम्स। नो, नन ऑफ द बिजनेस हैज़ दिस टाइम कि वो आपका फॉर्म पूरा फिल कर। और अगर है आपके फॉर्म्स हैं तो सारे एक्सेल बेस्ड होने चाहिए और उसके अंदर स्कोरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी जो भी कॉम्पिटेंसी है, किसी की कॉम्पिटेंसी है सेल्स वाली, तो आप उसमें सेल्स का, जैसे मैं आपको बता दी हूँ, अगर हायरिंग में, रिक्रूटमेंट में आपने, और अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ही फॉर्म बनाए और वो ऑनलाइन हो तो सबसे बेस्ट है, बिकॉज एक्सेल्स उनके पास पड़ी हुए हैं, दे हैव टू जस्ट ओपन इट। और आप लोग प्रिंटर्स निकाल के, और टू सेव पेपर इज़ टू सेव ट्रीज सीम्स वेरी एकेडमिक बट दैट इज़ वेरी ट्रू ऑल्सो। सो आपको वो ना हो रहा, और वो जो पलड़े होते हैं संभालने इतने मुश्किल है, इट्स वेरी वेरी टफ, कि बाद में आप भूल जाते हैं, आप भी थके हुए होते हैं, दिन में इंटरव्यू किया है, अब मैंने कहीं जाना है, वो नीचे गिरा हुआ होता है, आपको कभी भी नहीं मिलता। अगर हमने भी 22 साल गुजारे हैं तो इसी तरह सीखा है कि आपका इंटरव्यू एवेल्युएशन फॉर्म आपको बाद में नहीं मिल रहा होता। और बाद में HR अगर कभी, जहाँ के ऑडिट्स होते हैं, अक्सर के तो कईयों के तो होते ही नहीं है, वो पता है क्या कर रहे होते हैं, वो कहते हैं सर खुद ही फॉर्म्स निकाल प्रिंट करके उनको हायर टिक करके जल्दी टिक करके फ़ाइलों में लगा देते हैं। गवर्नमेंट में ये बहुत हो रहा होता है, गवर्नमेंट में वो उसको डालते हैं, और अगर जहाँ पे लाइन मैनेजर सिग्नेचर के वो इसका फॉर्म गुम हो गया था, ज़रा जल्दी से साइन कर दें 4-5, वो करके उसकी फ़ाइल कंप्लीट कर देते हैं। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, इस तरह की यूजलेस एक्टिविटी करने का फ़ायदा नहीं है जब यू आर बीइंग टॉट राइट नाउ ए सर्टिफाइड ह्यूमन प्रोफेशनल दैट आप एक ऑनलाइन एक्सेल फॉर्म बनाएं, वो एक्सेल की जो शीट है वो तमाम उसमें फॉरवर्ड कर दें। और नहीं व्हाट्सएवर, जैसे रिक्रूटमेंट में होता है कि मल्टीनेशनल्स में जो आपके पोर्टल पे ही उसकी फ़ीडबैक चली जाती है। नाउ द फीडबैक डज नॉट एवर गो ऑन पेपर, सो द मैनेजर राइट्स द कमेंट्स, और वो डैशबोर्ड में 1-2 डैशबोर्ड्स के एग्जांपल्स हम देखेंगे बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, तो आ जाता है। हाँ, अगर आप एक्सेल बेस बनाना चाहते हैं रिक्रूटमेंट में, तो आपने हर एक को 1 2 3 4 5 जो है कॉम्पिटेंसी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहते हैं कि रेलिवेंस विद जॉब इज़ 1 कॉम्पिटेंसी, ठीक है। दूसरे आप कहते हैं हमें इस, और एक कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर एक को चाहिए होती है, हर ही इंडस्ट्री में चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो आप 1 2 3 4 5 क्राइटेरिया असाइन करें, उसके लिहाज से उसके जो बॉक्स हैं उस पर आप क्लिक्स लगाएं और उनके नीचे जो है उसका टोटल स्कोर जो है वो मार्क कर दें, ठीक है। अगर आपके 7 कॉम्पिटेंसी हैं तो आप उसके लिहाज से उसका टोटल स्कोर मार्क करें एंड यू पुट द स्कोर देयर ऑफ ईच कॉम्पिटेंसी। हम ये नंबर्स काउंट करते हैं कि कितना इसका बना? हाँ जी, आप इसका करते हैं, आपकी जितनी कॉम्पिटेंसी हो ना, फॉर एग्जांपल अगर the person who has selected a number of 4 or 3 या हाँ, और आप वेट कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल आपने सिलेक्शन रिजेक्शन कैसे करनी है टू अपग्रेड योर सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वो आपने ऐसे करना है कि आपकी जितनी भी कॉम्पिटेंसीज हैं, आपने रेलिवेंस कर दी, आपने कम्युनिकेशन कर दी। चौथा, कई कंपनीज अपनी एक वैल्यू ज़रूर डाल देती है, फॉर एग्जांपल आपने इंटेग्रिटी कर दी, यू पुट डाउन इंटेग्रिटी, एंड आपने उसके बाद एक कर दी टेक्निकल स्किल्स कर दी। हाँ, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं, बट जो भी आप करना चाहें, देखिए देयर द स्पेक्ट्रम इज़ अकॉर्डिंग टू योर इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल उसकी टेक्निकल स्किल्स में कि प्रोडक्शन में है तो कितना काम आता है, अब उसको इतना बोलना ज़रूरी नहीं है, स्टफ लाइक दैट, व्हाट यू एवर वांट टू।
ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि मैनेजर्स का और जो वर्कर केडर का डिफरेंट होता है, मैनेजमेंट केडर या वर्कर केडर का, बट बाकी कॉम्पिटेंसीज का फ़र्क होना भी नहीं चाहिए। और टैलेंट मैनेजमेंट में भी अब ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ 3 लेयर्स में तकसीम किया जाता है। उसमें यहाँ पे ये जो लीडर्स हैं और ये जो हैं सारे जो है मिडल्स मैनेजमेंट्स कहलाते हैं, जिसमें मैनेजर प्लस असिस्टेंट मैनेजर सारे आ जाते हैं। और हाँ जी, मैं उस पर आ रही हूँ, आई विल कम बैक। मिडिल मैनेजर्स होते हैं और दीज आर ऑल अदर एम्प्लॉयज़। तो आप जब कॉम्पिटेंसीज उठाते हैं तो आप ऐसे ही रखते हैं जो टेबुलेट हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कॉम्पिटेंसीज उठाई एंड यू हैव पुट 4 और 5। अच्छा, अब 5 में आपने ये देख लिया कि अगर हर उसमें उसका जो मैक्सिमम स्कोर आएगा वो कितना आएगा। फॉर एग्जांपल दे आर 5 कॉम्पिटेंसीज एंड दे आर, उसके अगर सब में 5 आ जाएँ तो कितना बनेगा? 25 आ जाएगा। और आपने अपने मैनेजर्स को बता देना है कि जब 25 अगर का स्कोर है तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल 20 से नीचे का बंदा नहीं लेंगे, ठीक है? या आप उससे कम वेटेज कर दें अगर आप समझते हैं कि बहुत स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया है। सो द क्राइटेरिया इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 25 का जो है 80% टू 100% का जो बंदा है वो लिया जाता है। जहाँ पे हायरिंग क्रिटिकल होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल IT इंडस्ट्री में, उसमें कई दफ़ा उसको लूज़ कर दिया जाता है क्योंकि आपको बंदा नहीं मिल रहा होता। तो आप कहते हैं कि जनाब इतना टफ है क्योंकि हमारा हो सकता है यहाँ पे 5 ले लेगा, यहाँ पे 1 लेगा या 2 लेगा। तो आप उसको ये कह देते हैं कि जनाब हम यूँ करते हैं कि यहाँ पे हम इसको 20 की जगह 18 मार्क कर देते हैं। सुनो, आप कहते हैं जो 18 एंड अबव होगा वो बंदा हायर्ड है, एंड इफ़ समबडी इज़ 17 सो दे आर नॉट गुड टू हायर। सिंपल एज दैट। वेटेज कोई भी उठा लें आप, कॉम्पिटेंसीज जितनी है मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स विच an आइडियल पर्सन कैन एक्वायर, जिसका टॉप मार्क्स आ सके। सिंपल एज दैट। और उसके लिहाज से आप उसका 80% टू 100 कर लें या 70 टू 100 कर लें, नॉट लेस दैन दैट। क्योंकि अगर किसी के पास 70 से भी लेस है, इट मीन्स दैट द पर्सन इज़ नॉट द राइट रिक्रूट फॉर द कंपनी। आपकी कॉम्पिटेंसी से नहीं मैच कर रहा तो आपने रख कैसे लिया है। इसके अलावा जितनी भी आप डेप्थ में जाना चाहिए यू कैन गो। कई लोग कॉस्ट ऑफ देखें, अब ऐसे चेहराम के बजाय वो कॉस्ट ऑफ टर्नओवर भी निकालते हैं, लेकिन अगर आप इसके वैलिडेटेड उसमें जाना प्रोडक्शन फैक्टर्स में जाके निकालना शुरू करें तो उसके साइमुलेशन मॉडल्स इतने ज़्यादा इन डेप्थ होते हैं कि कुछ ऑफ द क्राइटेरियाज आई विल रिकमेंड। देयर इज़ अ इंसाइक्लोपीडिया फार्मूलाज अवेलेबल ऑफ HR मैट्रिसेस, लेकिन हर एक आपने उठा के यूज़ नहीं करना शुरू कर देना। इट्स जस्ट लाइक कि आपके पास इंग्लिश की पूरी डिक्शनरी अवेलेबल होती है ना, है कि नहीं इंग्लिश बोलने के लिए सोच के रहे हैं। सो इफ़ यू हैव अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, जब हम इंग्लिश में बोलते हैं हम कितने के वर्ड्स यूज़ करते हैं? वेरी फ्यू। और आप मुझे बताइए कि हम एक दूसरे को बात पुट अक्रॉस करते हैं? एक सिंपल बात है, HR एनालिटिक्स माइट सीम वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट इट रियली डिपेंड्स कि आप कौन सी डिक्शन उठा रहे हैं और आपने कैसे प्रेजेंटेशन देनी है। तो आपने उस डिक्शनरी में से अपनी उसके एक्सट्रैक्शन करनी है कि मैंने ये वाला यूज़ करना है, ये इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट है। जैसे ये कल वाली ये जो थी ये 2015-16 जनरेटेड रिपोर्ट्स है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि एवोल्यूशन कैसे आ गया रिपोर्ट्स में, हर चीज़ जो है ग्रो कर गई है। देन HR टू एम्प्लॉय रेशो, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना 21, अक्सर लोग कह रहे थे ये जो 22 है टू बी एग्जैक्ट। HR कहते मैं तो मर गया हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, मेरे पास इतना काम है। अगर उनसे पूछो ना कि अच्छा जी आपके एम्प्लॉयज़ का है, वो कहते हैं मैं अकेला सारा काम कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, मेरे पास 50 एम्प्लॉय रखे हुए हैं तो मैं 50 को अकेला देख रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे द पर्सन इज़ फॉल्टरिंग वाइल बिकॉज आप अगर गूगल करें तो 100 एम्प्लॉयज़ के लिए 1.2 एम्प्लॉय यानी कि 1 एम्प्लॉय काफ़ी है। अगर आपके एनालिटिक्स सही है ना एंड योर डैशबोर्ड्स आर वर्किंग, आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन सर्विस द एम्प्लॉयज़ एट लार्ज। आई विल बी एबल टू शो यू अ पोर्टल एनालिटिक्स के, मैं आपको बात बताती हूँ। बात यह है कि आप ह्यूमन बिहेवियर को गेज कैसे करते हैं। बैक इन 2004 when Telenor Pakistan was launched and I was single-handedly looking after 1,000 employees, single-handedly. Or we were dying with the work pressure. I was dying because I was supposed to pick up every call. और I was part of that team जो 2008 में जाके preferred employer of Pakistan उसमें बन गई थी।
तो देयर वाज अ बेंचमार्किंग क्राइटेरिया कि आपके जो लोग हैं एक भी फ़ोन कॉल मिस नहीं होगा। आप 200 की मैस रिक्रूटमेंट करेंगी पर डे में प्रोजेक्ट टीम के साथ जाके, जिसमें ऑपरेशंस है, लाइन इन्वॉल्व है, और अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया करेंगे और आपका ज्वाइनिंग फैक्टर वाव होगा। इसका मतलब यह है कि एम्प्लॉय की फ़ाइल के अंदर उसका बैंक अकाउंट लेटर, उसका जो सेल फ़ोन की सिम की कार्ड लगा हुआ होगा, एनीथिंग दैट एम्प्लॉय पॉलिसी का होगा, उसकी ओरिएंटेशन परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय आपका कस्टमर है और एम्प्लॉय हमें रेट करता था कि हमने उनको कैसे सर्विस किया। एंड आई एम टेलिंग यू, एंड वन HR एम्प्लॉय वाज सर्विसिंग 1000 एम्प्लॉय, then and it went on for like 9 months. So luckily the way we were groomed also, that there was a heavy focus on how to manage the workload and bring the service output. So we one fine day, so we were almost collapsing, you know, because and you were supposed, one HR executive has to do the inpatient claims, outpatient claims as well. सो यू कैन इमेजिन 1000 एम्प्लॉयज़ के क्लेम्स आ रहे हैं, जिसको सारी रात बैठकर मैं एक्सेल में डाल रही हूँ, और उनमें उनके जनाब उनका क्लेम जो है वो एक पैनाडोल से लेके उनके घुटनों के 16 लाख के क्लेम तक है, क्योंकि वहाँ पे OPD एक्सपेंसेस ही इतने ज़्यादा थे। सो एक एम्प्लॉय जो है, और वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम क्या है, आयशा, और वहाँ पे ये जब HR के आपका सर्विस लेवल होता है और जब आप उस पर ऑपरेट करना सिखाया जाता है, तो फिर द थिंग्स यू स्टार्ट गैदरिंग थिंग्स कि आपने लोगों को सर्विस कैसे प्रोवाइड करनी है। तो फिर हमने कहा कि भाई ओके, वी आर कोलैप्सिंग, मतलब इमोशनली तो 8 महीने तक आप अपना बेस्ट दे लोगे, पर बेस्ट की भी तो लिमिट है। बट ऐसे सिस्टम्स फिर हम सजेस्ट किए गए, तो देयर वाज दिस प्रोग्राम लॉन्च, जो बाद में बहुत कॉपी हुआ, और उसको मैं आजकल हर IT उसमें सुनती हैं कि उसको एज टू एज के नाम से, उसका नाम था हेयर टू हेल्प। उसमें सिर्फ हम लोग ने, क्योंकि हम खुद फ़ोन कॉल्स लेते थे और फ़ोन कॉल्स मिस नहीं हो सकती थी, सारी रात बचता था, क्योंकि द कॉल सेंटर एम्प्लॉयज़ वर अवेक एट नाइट, वो ड्यूटी पे होते थे, वो फ़ोन उठ रहा है उसको। सबसे पहले तो हमने टेबुलेशन शुरू कर दी कि सारी क्वेरी, एक बंदा फ़ोन करके पूछ रहा है कि जी मेरी जो है सेल फ़ोन लिमिट कितनी है, उसको भी हम डालना शुरू हो गए। वी वर फर्स्ट स्टार्टेड मेंटेन दैट डेटा आवरसेल्व्स, देन वी ब्रिंग इन 3 इंटर्नीज़ ओनली। 3 इंटर्नीज़ को एक सेल फ़ोन हेल्पलाइन दी गई, जस्ट लाइक कस्टमर सर्विस हेल्पलाइन, और हम सारे एम्प्लॉयज़ को कहा गया ये एज टू एज है, और उसका 700 कुछ नंबर था टेलेनॉर का अपना ही, और उसमें आप कॉल्स डालें। अब वो 3 इंटर्नीज़ जिन्होंने कभी किसी प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम नहीं किया, उनका काम सिर्फ ये था कि वो फ़ोन्स उठाकर जस्ट लाइक अ कॉल सेंटर इटसेल्फ वो एम्प्लॉय सर्विस शुरू कर दी उन्होंने सिर्फ, और उनको खुद भी कुछ नहीं पता, क्योंकि वो HR एक्सपर्ट्स तो नहीं बैठे हुए भी, वो तो अभी कॉलेज से निकल के आए हैं, उनको क्या पता कि जी किसी को क्या जवाब देना है। सो व्हाट दे वर डूइंग इज जस्ट टेबुलेटिंग। क्वेरी नंबर 1, पर डे 300 कॉल्स, 400 कॉल्स आ रही हैं, तो वो हम टेबुलेशन शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी 300 कॉल्स पे वो रेलेवेंट HR BPs को उनका डेटा फॉरवर्ड कर रहे हैं, जैसे सेंट्रल रीजन का आ रहा है, उनको जो है वो करके उसके ऊपर जो है उसका टर्न अराउंड टाइम एक टैग डिफाइन कर दिया गया कि जी 6 घंटे के अंदर एम्प्लॉय को जवाब जाएगा। एक इमीडिएटली जवाब देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बैक एंड BPs जो है फिर वो अपनी 100 क्वेरीज निकालेंगे, वो पीछे बैक एंड पे बैठते थे। देन वी हैड अ ब्रेथ ऑफ रिलीफ, क्योंकि आपका जो फ़ोन सुनने में टाइम लग रहा है और फ़ोन में अगले की फीलिंग्स गैदर करने में, अपनी फीलिंग्स गैदर करने में, आप वॉशरूम नहीं जा सकते हो, आप सो नहीं सकते, आप खाना खा रहे हो तो फ़ोन आपके हाथ में है, वो एकदम क्लोज़ हो गया। सो द पॉइंट इज़, इसी तरह अनदर एक्सपीरियंस आई गॉट वॉज कि एक ग्रीवेंस एक कंपनी में देयर वर 1000 एम्प्लॉयज़, और जब हम जा रहे हैं तो हर बंदा आके सिर्फ ये पूछ रहा है कि जी कहीं पे पॉलिसीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कोई पोर्टल नहीं है। अगर आपने कहीं पे पॉलिसी रखी नहीं हुई और वो डेस्कटॉप पे लोगों के नहीं है, लोग आपको रोज़ आके पूछेंगे मेरी, और आपकी कोई पेरोल पॉलिसी, जिन कंपनीज़ में ये भी हो रहा था ना कि पेरोल किसी का 28 को निकलता है, कभी 5 को चला जाता है। एक तो फाइनेंस से बात करें कि उसकी डेट एक होनी चाहिए, ठीक है, वो कहते हैं जी वो ओनर नहीं आए, चेक नहीं साइन हुआ, ये भी मसले हैं। बट जब भी है तो आप उतनी बैंडविड्थ डिफाइन कर दें, आप कहें योर सैलरी विल बी प्रोसेस बिटवीन 1 to 10, और उसको कहीं लिख दें और उनके डेस्कटॉप्स पे रखें, उनके लैपटॉप्स पे डाल दें।
ताकि एटलीस्ट वो 10 दिन लोग आपको कॉल ना करें. दैट्स हाउ नंबर्स एंड डेट्स आर इम्पॉर्टेंट. दैट्स हाउ यू डू योर एनालिसिस एंड स्टॉप पीपल creating a traffic on you which will create an emotional burden, while you can do that just by simply tabulations of data and benchmarking, जिसकी हम कल एक quantify करें, एक मैंने कहा था ना एक quantify करें, we saw that on the slides. दूसरा हमने क्या कहा था, system identify करें, जैसे मैंने बात की कि H2H was a system which was launched. तीसरा हमने कहा था benchmarking करें. benchmarking का मतलब है कि आप चाह क्या रहे हैं, आपने करना कितनी देर में सर्विस कर सकते हैं, और जब आप बेंचमार्किंग करेंगे तो यू विल सी कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, आप उस लिहाज से करके जितना आप अचीव कर सकते हैं एंड यू डू. तो HR टू एम्प्लॉयर रेशियो में इंटरेस्टिंगली जो HR वाले ये कहते हैं ना कि हमसे काम नहीं होता, हम कोलैप्स कर रहे हैं, तो ये हर किस्म की रिसर्च कहती है कि 1.2 एम्प्लॉयज़ कैन ईजिली सर्विस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल सर्विसिंग, जिसमें एम्प्लॉय लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, जिसमें हर चीज़ आ जाती है, ऑडिटिंग भी आ जाती है, जिसमें इनोवेशन और वो भी. तो 1.2 अगर HR एक एम्प्लॉय हो, अगर वो स्मार्टली काम कर रहा है, तो वो सर्विस कर सकता है 100 एम्प्लॉयज़ को. बट नॉट दैट वी आर गोइंग टू टॉक, जस्ट टू गिव यू अ रिलीफ फैक्टर. बट हाउ विल यू डू दैट, आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. अच्छा जी, टाइम अंटिल प्रमोशन जो है, प्रमोशन रेट क्या है, दिस इज़ वेरी सिंपल. ये बहुत नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रमोटेड डिवाइडेड बाय हेड काउंट, राइट. नेक्स्ट आ जाए. अच्छा जी, एवरेज एज, वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है. मैं आपको 2 डैशबोर्ड्स पे दिखाऊंगी जिसमें आप सोचेंगे अभी एज का क्या मसला है. वाई एज इज़ इम्पॉर्टेंट, आपकी एवरेज एज कंपनी की निकालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता है आपकी कंपनी की एवरेज एज क्या है, आपको पता है आपकी कंपनी में इस टाइम एवरेज एज क्या है, किसी को पता है HR प्रोफेशनल्स को? आप HR पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज एज इज़ अ वैलिडेटेड जो एम्प्लॉय नंबर है की एज है वो है. हाँ जी, और वो कैसे कैलकुलेट होगी? वेरी गुड, वेरी गुड, सिंपल एज दैट. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एज हो सकता है 25 हो, हाइपोथेटिकली मुझे नहीं पता आपके लोगों की एज है, 32 हो, आपकी कुछ भी हो सकती है, किसी की जनाब 21 हो सकती है, 40 हो सकती है, वाई नॉट. 40 के एम्प्लॉयज़ होते हैं आपके, अक्सर मैनेजर्स होते हैं. 37 हो सकती है. सो व्हाट डू यू डू इज़ कि आप इन सब का सम लेंगे, सम ऑफ ऑल एजेस, ठीक है. और ये एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5. अगर आपका 100 का है तो हेड काउंट है, आप 100 से डिवाइड कर देंगे. अगर आपका 7 का हेड काउंट है, आप 7 से डिवाइड कर देंगे. उनकी 7 की एक्चुअल एज लिखी होगी, वो एज कभी किसको डिस्क्लोज नहीं होगी. कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ द नंबर 1 पार्ट ऑफ HR इंपॉर्टेंस, यानी कि गलती से भी कभी किसी को पता नहीं चल सकता किसी की एज क्या है, क्योंकि जब आप एवरेज निकालेंगे तो आपके ख्याल में यहाँ पे निकाल लें कोई फ़ौरन नहीं, आप इसको सम करें, डिवाइडेड बाय 5 करें, यू कैन जस्ट टेल, जाके आपको भी एवरेज एज नज़र आ जाएगी कि क्या एवरेज एज है. 31 की जी एवरेज एज है ना. आप देखिए इसमें कितना इंटरेस्टिंग आपको नज़र आ रहा है कि इनमें से कोई एम्प्लॉय 31 का है नहीं है ना. तो और अगर हो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को क्या पता 31 किसका है, आपने किसी की एज नहीं डिस्क्लोज करनी. लेकिन ये 31 नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? नाउ लेट्स कम टू द बिगर पार्ट ऑफ इट. यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक. ये 31 नंबर है, आगे मैं आपको दिखाऊँ भी कि ये भी एक कंपनी का थोड़ा सा स्टैट्स दिखाती हूँ एज अ एग्ज़ाम्पल. जब आपकी कंपनी की एज एवरेज एज 31 होती है तो एम्प्लॉयज़ की एस्पिरेशंस डिफरेंट होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनकी एंगेजमेंट एक्टिविटी में एक क्रिकेट मैच रख सकते हैं, और उस क्रिकेट मैच रखते हुए ये भी देखना ज़रूरी है कि आपकी डाइवर्सिटी कितनी है. जैसे कल हमने वो रेशो भी निकाली, डाइवर्सिटी रेशो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी एज 27 आ रही है, एवरेज एज आपकी बहुत यंग होगी, द कंपनी डिसीजंस विल बी एज यूथफुल, ड्रास्टिक and based on energy instead of experience. At the same time अगर आपकी एवरेज एज 40 होगी तो आई टेल यू द कंपनी की जो एज, इसका मतलब है कि लोग बूढ़े हो रहे हैं. स्टेबिलिटी काफ़ी है, इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. स्टेबिलिटी काफ़ी है नहीं, और एनर्जी नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन में. आई वॉज वंस डीलिंग विद अ कंपनी और इवन नाउ आई डील विद. तो सबसे पहले ये दिस इज़ वन मैट्रिक्स वी ऑलवेज कैलकुलेट, जाते ही हम कैलकुलेट कराते हैं.
उसकी वजह ये कि जो आपने उसका करंट स्टेटस देखना है ना, उनका माइंडसेट ही डिफरेंस है, बिकॉज आपने वो जनरेशंस का पढ़ा होगा, द एक्स एंड द वाई, द मिलेनियल्स एंड द जी, और हाँ, और अभी जो रिसेंटली आए हैं, दे आर कॉल्ड वो मतलब जी को भी एक्सीड कर गए हैं, दे आर कॉल्ड समथिंग लाइक, they have a very dynamic term for them जो अब आए, और my children are part of that term somehow, और and I can relate to that. हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, जी से आगे आ गई है, जी से आगे आ चुकी है, जी से आगे आ गई है. I'll search that, अभी मैं आपको बताती हूँ ब्रेक के बाद. So that is a beautiful term उनके लिए यूज़ हुआ है, and they are the ones who are actually going to be the ones who are going to be in workplace in the next 20 years. वो आ रहे हैं, वो मतलब आप एक बच्चा जो आज 5 साल का है, वो जनरेशन आ चुकी है, वो जी को भी कर चुकी है, सरपास कर चुकी है, मिलेनियल्स को भी कर चुकी है, मिलेनियल्स से भी आगे जनरेशन, और ये जो है नेक्स्ट 15 ईयर्स में दे आर एट द वर्क प्लेस. बल्कि आपने कई दफ़ा वो सुना होगा, जो फ्रीलांसिंग में जो बच्चे हैं राइट नाउ कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसीज में काम कर रहे हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इज दैट देयर आर सम थिंग्स, एक कोई टोकन होता है जिसमें जो वर्चुअली बिकता है, जिसमें NFTs, exactly, thank you for telling me that. And these are my my kids telling me that mama, do you know that इसके NFT value और वो business है ना, उसमें what is NFT? उन्होंने कहा no NFT is non-refundable token, no non-fungible tokens. So I had to search कि non-fungible tokens क्या चीज़ है. So you can imagine कि अगर किसी कंपनी की एज 27 है या उससे लेस है, तो वो कैसे ऑपरेट करेगी. और समटाइम्स देयर आर कंपनीज जो अपनी एज को उस लिहाज से डेविएट भी करती हैं. आपको पता है दुनिया में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, कल भी हमने पॉपुलेशन की बात की थी, they most of the time invest into the labor markets because their own labor is growing old. The entire Europe is getting old and their population is not growing. We are the only populations जो Asians हैं वो 4% और इस पे जा रहे हैं, which is a very high growth. So कल we discussed this कि जब आप ये करते हैं तो ये पिक्चर लेना भी बड़ा ज़रूरी जी. तो each and every benefit you are planning is according to the each and every engagement activity, each and every promotion activity, career and succession planning is according to the average age. Same as the case of average length of service. जैसे किसी ने कहा tenure, आपने कहा stability है कि नहीं है. मैं वो डैशबोर्ड दिखाऊंगी, इसमें एवरेज लेंथ ऑफ सर्विस भी आप देखेंगे कि लोगों की कैलकुलेट हुई भी है. रिटायरमेंट रेट क्या है? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. रिटायरमेंट रेट्स जो है ना प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर्स में तो हाई, एवरीबडी वांट्स टू गेट इनटू द पब्लिक सेक्टर. लेडीज़ का 55 है बाय लॉ 55 है लेडीज़ का, और जेंट्स का 60 है. बट पीपल गो इनटू द पब्लिक सेक्टर जस्ट टू गेट टू द एज ऑफ 60. वो तो जाते ही रिटायर होने के लिए हैं, जितने भी वो जाते ही इसलिए हैं. एंड देन यू कैन सी अ विजिबल डिफरेंस. देयर इज़ अ वेरी लॉन्ग डिबेट, बिकॉज अगर यूके के लेबर लॉ पढ़े ना, बिकॉज आई हैड दिस इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जब मैंने अपनी कंप्लीट की, तो उसका जो बाइडन इज़ द प्रेजिडेंट एट 78 ईयर्स ऑफ एज. US का प्रेसिडेंट बन गया. एंड यू नो मैनी प्राइम मिनिस्टर, अब राइट नाउ हमारा जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर था, आई एम टॉकिंग अबाउट जो बाइडन द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, करंट प्रेसिडेंट. इवन ट्रम्प वॉज 74. सो एंड देन यूके में ये कहा जाता है कि अगर आप किसी एज पे, लकीली एक मैं बात बताऊँ, यहाँ पे जो HR ऑपरेट करता है ना, अगर यही HR हम सारे उठ के चले जाए ना यूके में, तो हम तो कहेंगे कि हम कहाँ आ गए हैं, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग लेबर और एम्प्लॉय प्रोटेक्शन वहाँ पे है कि अगर आप किसी को ये सोच भी रहे हो ना कि ये जो है ज़रा बड़ा एज का हो गया, तो वो आपके ख़िलाफ़ ऑफेंस बन जाएगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन क्राइटेरिया में आप पार्क हो जाएंगे. और यहाँ पे जो इंटरव्यू पे हम सवाल पूछते हैं ना, आपकी शादी हुई भी है कि नहीं हुई अभी, हाँ आपकी एज क्या है, आपके बच्चे कितने हैं, आप मैरिड हैं, अच्छा शादी का इरादा तो नहीं है, अच्छा बाद में काम कैसे करेंगे, अब्बू क्या करते हैं, अम्मी क्या करती हैं, और पीछे. ये हमारे पेट क्वेश्चंस हैं. दीज आर वेरी अनएथिकल क्वेश्चंस इंटरनेशनल. सो देन एंगेजमेंट रेट वेरी इंपॉर्टेंट. एंगेजमेंट की कितने के लोग कराते हैं. और मैं आपको बताऊं, वी हैव कम टू दिस स्टेज कि हम HR एनालिटिक्स से निकल कर भी अब हम तो उस स्टेज पे आ गए हैं कि जब हम डेटा की टेबुलेशन देखते हैं, हम एक एंगेजमेंट रेट देखते हैं, और एंगेजमेंट रेट के अंदर जो इशू आ रहे होते हैं हम वो भी उठा लेते हैं, बिकॉज देयर आर सर्टन थिंग्स
यहाँ तक ये है कि आप डेटा का इस्तेमाल जिस किस्म की भी, जैसे आप जैसे कहते हैं ना विंडो ड्रेसिंग जिसे कहा जाता है, आप उस तरह की विंडो ड्रेसिंग भी करते हैं। सो जब आप हाईली एडवांस उस पर चले जाते हैं, हाउ टू कैप्चर दैट विंडो ड्रेसिंग कि कहाँ पे हुआ है। यानी कि एक एग्जांपल देती हूँ जस्ट टू मेक इट ईजियर फॉर यू। विंडो ड्रेसिंग में क्यों कह रही हूँ कि जैसे वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स वी गॉट टू नो, ये जो है हमें इंफॉर्मेशन ऑल मिल रही है, उसका एंगेजमेंट रेट बहुत अच्छा आया है, तो हुआ क्या है उस यूनिट में। फॉर एग्ज़ाम्पल कोक, टेलेनॉर, सारे इतने बड़े बिग नेम्स के साथ, तो वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स वी गॉट टू नो इन वन ऑफ द कंपनीज। सो देन वी फाउंड आउट कि जिस टाइम पे उन्होंने ऑनलाइन एंगेजमेंट डेटा फेल किया ऑफ द इंटरनेशनल वेंडर, उस टाइम पे मैनेजर ने उनको साथ बिठाया हुआ था। सो आप उससे भी लेवल वो है कि आप डेटा कंट्रोल और प्रोटेक्शन पे भी कैसे चले जाते हैं। सो आपने एंगेजमेंट रेट्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करने हैं। सो उसमें कई स्कोर्स होते हैं जिसको और हर कंपनी का डिफरेंट होता है। एक स्कोर कहलाते हैं NPS स्कोर, नेट प्रमोटर स्कोर कहते हैं इसे, NPS स्कोर। यहाँ पे ये इसका मेंशन नहीं आएगा अमूमन ना, क्योंकि वो एंगेजमेंट की अपनी जो एनालिटिक्स हैं उसकी इतनी डेप्थ है, उसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ का ना उसके 10 जो एक मेजर मैट्रिक्स होते हैं, क्योंकि उसकी मैं अगर डेप्थ में गई तो पूरा सेशन जो है ना 1-2 सेशन इस पर हो सकते हैं। एंगेजमेंट जब रेट कैलकुलेट हो रहा होता है ना तो डिफरेंट उस पर हो सकता है। अच्छा नहीं, मेरी तो इसलिए क्योंकि वो दैट्स एन अदर स्टोरी कि कैसे वो मैनेज होगी। बट नेट प्रमोटर स्कोर जब उठाया जाता है, आप इस तरह उठाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिकली जो है ना 100 समझें कि हर मैट्रिक्स में एंगेजमेंट में एक नंबर लिया जाता है, ठीक है। अब आप एओएन ह्यूएट ले लें, एओएन ह्यूएट ये बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं और जो लोकल कंसल्टिंग है, जैसे हम लोग भी जाके आराम से मेरी जो कंपनी है वो भी निकाल देती है। आप तो ह्यूलेट पैकर्ड हो गया, हर एक के डिफरेंट ह्यूलेट पैकर्ड, ये इंटरनेशनल वेंडर्स हैं, बहुत से कर रहे हैं और लोकल आपको बहुत सस्ता कर देते हैं वही काम। अभी मैं आगे मर्सर्स का भी आपको दिखाऊंगी। पॉइंट ये कि अगर आया तो आपने ये कहना है कि जैसे फॉर एग्जांपल जिसका एंगेजमेंट स्कोर 90 to 100 आएगा वो हाईली एंगेज्ड है, ठीक है। इतनी बड़ी ये नहीं आता। जिसका जो है 80 to 90 आया वो कितना हुआ, वो एंगेज्ड है। जो भी आपकी चेकलिस्ट आपने बना दी 80 to 90 आया वो एंगेज्ड है। जिसका जो है 70 to 80 आया वो मतलब समझें कि वो ऑन जॉब सेटिस्फाइड है, मतलब दे आर नॉट हैप्पी और एंगेज बट दे आर सेटिस्फाइड। एनीबडी हु इज 60 to 50 आया, हाँ नहीं 60 to 50 आया वो जो है वो डिसएंगेज्ड क्राइटेरिया में शो होने शुरू हो गए। और अगर एनीबडी हु समबडी हु इज लेस देन 50 डिस्ट्रक्टिव क्राइटेरिया में आ जाते हैं। या मतलब वर्ड ये यूज़ नहीं किया जाता बट इसको कहा यह जाता है दे आर हाईली डिसएंगेज और रेड जोन में डाल देते हैं। अमूमन 3 स्लैब्स उठाते हैं। आपको कोई मैं रिपोर्ट भी अगर अभी मैं निकाल लेती हूँ तो दिखाते हैं। पॉइंट यह है कि उस तरह ये एंगेजमेंट स्कोर्स में आपने डाला जाता है कि आपने पैरामीटर्स उठाने होते हैं। आप 10 उठा सकते हैं या 20 पैरामीटर्स उठाएंगे। पैरामीटर्स में आप क्या क्या चीज़ें इवेलुएट करेंगे, आप ये इवेलुएट करेंगे कि उसका कंपनी का विजन उठाएंगे। यू द आस्क मेजर क्वेश्चन यू आस्क इज डू यू नो द कंपनी विजन, आर डू यू ट्रस्ट योर कंपनी लीडरशिप, आपका ट्रस्ट फैक्टर है कि नहीं। डू यू थिंक दैट योर मैनेजर इज़ नाइस विद यू। सो आप 3 चंक्स में उस क्वेश्चनर को डिवाइड करते हैं। पहला क्वेश्चन होता है द कंपनी कल्चर, आप इस कंपनी में काम करके खुश हैं। यू विल आस्क द क्वेश्चन विद द 5 पैरामीटर्स, देन आप उसके लिहाज से उसकी स्कोरिंग उठाएंगे। दूसरा आप पूछेंगे द लीडरशिप ऑफ द कंपनी, जिसमें आप बोर्ड मेंबर की बात करें, CEO या ओनर की बात करें। तीसरा आप पैरामीटर उठाएंगे आप अपने बॉस के साथ खुश हैं। चौथा जो उठाया जाता है वो अमूमन कॉम्पेन बैन होता है कि आप अपनी सैलरी के साथ खुश हैं, जिसका अक्सर जवाब सबसे बुरा ही आता है, चाहे जितने भी सैलरी, अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं है। और 5वां उठाया जाता है हमेशा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट या के बारे में कि आपको इस कंपनी में कोई फ्यूचर नज़र आता है, करियर प्लान नज़र आता है। तो और इसके आगे भी बात करेंगे कि यहाँ तक है एक केस स्टडी भी देखेंगे जिसमें मतलब काफ़ी कंपनीज ये भी कराती हैं कि कितने आपके लोग जो है वो नेक्स्ट ईयर के अंदर आपकी कंपनी छोड़ने वाले हैं।
वो भी आपके एंगेजमेंट स्कोर से निकल आता है आराम से, क्योंकि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतने लोग आपकी कंपनी छोड़ के चले जाएंगे बिकॉज वो यहाँ से नज़र आ रहा होता है. सो दैट्स वाई एंगेजमेंट क्राइटेरिया इज मेड. नाउ वी आर गोइंग टू कम टू द सैलरी हाइक सिंस लास्ट ईयर, वो निकाले हैं. अच्छा, ये बहुत डिटेलिंग है और ये भी होती है टाइम टू फिल, टाइम टू हायर. मैं आपको एक्चुअल डैशबोर्ड्स पे लाऊंगी. कॉस्ट पर हायर इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. कल बात हुई थी कि कितना टाइम लगता है, टाइम टू फिल अ पोजीशन, द एनर्जी, द रिक्वायरमेंट. जो HR का रिसोर्स बिठाया, जो लाइन मैनेजर जिसने सेल्स करनी है, अगर वो इंटरव्यू करी जा रहा है तो उसकी भी सैलरी बीच में काउंट करें, उसकी पर आवर कॉस्ट भी तो आता है. आपका फर्स्ट ईयर रेजिग्नेशन रेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट KPI है. अक्सर जो मल्टीनेशनल में स्पेशली प्रेफर्ड एम्प्लॉयर के लिए जो बेंचमार्क करते हैं, फर्स्ट ईयर नहीं बल्कि प्रोबेशन में जो कन्फर्मेशन रेट है, जो प्रोबेशन का कन्फर्मेशन रेट है, वो जो रिक्रूटमेंट टीम है उसका KPI होता है कि फॉर एग्जांपल उन्होंने 100 बंदा हायर किया है और 100 में से उनके जो है 20 बंदे छोड़ के चले गए हैं, तो दे हैव जस्ट रीच 80%, विच इज़ नॉट अ गुड रेट. एटलीस्ट 90% लोगों को प्रोबेशन कंफर्म होना चाहिए, नहीं तो आपने अच्छा काम नहीं किया, ये आपका कसूर है. सो HR itself इज़ बीइंग बेंचमार्क. जी, सो पाकिस्तान एज अ कंट्री आज तक एक मैनेजमेंट को लॉ नहीं दे सका. बाकी आपको सारे सड़कों पे लॉयर भी नज़र आते हैं. इतनी एक नलायकी है एज अ सोसाइटी. नॉट टू टैलेंट अपनी जगह पर एक नलायकी भी अपनी जगह, डिटेलिंग नहीं होती. तो लॉ 1806 का था जिस पे कहा गया है दैट एवरी पर्सन इज़, और ये दीज डेज ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, 2 साल पहले भी एग्जिस्ट करता है, लिखा हुआ है दैट यू आर बाइंडेड. द अदर थिंग इज़ दैट आपका एक टर्मिनेशन सिंप्लिसिटी क्लॉज है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट में जो आपका ओनर है उसे 100% राइट देता है. दे कैन लेट गो ऑफ यू इन अ मिनट. अच्छा, इसी तरह तो इस वजह से जो प्रोबेशन का क्लॉज है एक्चुअली वाई डू दे डू इट, 9 मंथ्स के बाद आपका जो लेबर कोड का है फिर भी वो थोड़ी बहुत कहता है कि जनाब लोग कैसे थोड़ी सी प्रोटेक्शन लेते हैं. जैसे PSOs के बड़े फेमस केसेस हैं जो लेबर लॉ के गए जिस पे लोगों को कोई रिलीफ मिला. कुछ ऐसे मैनेजमेंट के केसेस हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया. वो बेसिस ऑफ वेटेजेस ये देते हैं कि अगर 9 मंथ्स गुजर गए और लेबर का ये है तो बंदा ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगा. एक तो मैं आपको ये बता दूं, बंदा अगर आपने उसे नहीं किया हुआ और आपके प्रेमिस में है और वो प्रूफ कर देता है और इंटरेस्टिंग वो प्रूफ कर देता है कि वो आपका एम्प्लॉय रहा है, यानी कि कोई पे स्लिप मिल गया ये है वो, तो वो आपका एम्प्लॉय वैसे ही हो जाता है. तो कई ओनर्स को ये बात ही नहीं पता कि अगर 9 मंथ्स के बाद वो कंफर्मेशन नहीं करे तो एम्प्लॉय तो ऑटोमेटिकली कंफर्म है, उसको कंफर्म होने की ज़रूरत ही नहीं. मैं इस पर बहुत है. उसकी वजह यह है कि अगर आपके पास लेटर भी है, लेटर में अगर आपकी तनख्वाह लिखी हुई है ना 50,000 एक टीचर की, अगर वो मिनिमम वेज पे नहीं ना आ रही और वो प्रूफ हो जाता है कि एज अ टीचर इतने पैसों पे हायर हुए थे, तो आप लेबर क्राइटेरिया में वो जो आपका लॉयर है ना सबसे पहले प्ली ये फेंकता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से या करते हैं ना, और मेरे लॉयर से भी है, प्ली ये जाती है कि यू डू नॉट फॉल इनटू द लेबर क्राइटेरिया. जो फाइट शुरू होती है उस पर आती है कि लेबर तो वो है जो मिनिमम वेज में है. तो जो आपका लेबर कोड ऑफ पाकिस्तान की वो जो रेड बुक्स हैं भारी भारी आपने देखे होंगे, वो प्रोटेक्शन उसी टाइम पे रिमूव हो जाती है. दिस इज़ द प्रॉब्लम. और अगर वहाँ से भी ना हो समटाइम्स, क्योंकि जो प्राइवेट है ना वो तो बड़े स्ट्रॉन्ग है ना, उनका गवर्नमेंट में आपको मिलते हैं स्टेज. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. गवर्नमेंट में कुछ ये है कि इस तरह के आपके प्रोटोकॉल्स आएंगे, आपको काफ़ी बैरियर्स, PSO वगैरह जिनके भी मैं कह रही हूँ, ये सेमी गवर्नमेंट्स हैं ना, इनमें आपको अक्सर आप जीते हैं, जो लोग गए हैं वो जीते हैं. बट जो प्राइवेट कॉरपोरेशंस में अगर कोई लोग गए हैं तो हारे हैं, आप उठा के देख. और अगर हारे नहीं भी हैं, जीते भी हैं, ऐसे मैं नहीं कह रही कि कोई ना जाए. पीपल शुड गो, बट देन आपको फिर पता होना चाहिए कि आपके पास पेपर वर्क कितना है, आपके पास सैलरी स्लिप्स हैं, आपके पास ये हैं, यानी कि एक 1 और 2 एम्प्लॉयज़ जिसकी परफॉर्मेंस का इशू बना के बॉस ने उसको टारगेट किया, उसे टर्मिनेट करा दिया गया. तो वो उस केस में उस एम्प्लॉय के पास पूरा रिकॉर्ड था जिसमें वो खुद ही उसे वेल डन लिख रहा है, उसे कह रहा है, और वन फाइन डे उसने अपने बॉस को जवाब दे दिया बड़ा एग्रेसिव किस्म का. सो एविडेंस बेस्ड मैंने कहा था ना कल, कौन सी डिसीजन थे, गट बेस्ड, एक फैक्ट बेस्ड, एविडेंस. तो एविडेंस वाज इन द फेवर ऑफ द एम्प्लॉय, सो द कोर्ट डिसाइडेड. अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. हर प्रोबेशन के बाद HR, सबसे पहले बात यह है कि HR ने सिर्फ ये नहीं प्रोड्यूस करना कि दूसरे क्या कर रहे हैं, उसने सबसे पहले ये करना होता है कि हायरिंग मैनेजर से भी फिल कराना होता है. और हर प्रोबेशन के बाद देयर इज़ एक्चुअली न्यू ज्वाइनर्स को बांटा जाता है, अच्छी कंपनीज़ में जाके देते हैं कि प्लीज़ हमें रेट करो, वर यू हैंडल्ड प्रोफेशनली ड्यूरिंग ज्वाइनिंग, ओरिएंटेशन में. नहीं, HR को रेट कर रहे हैं आप, आपके साथ किसी का सलूक अच्छा था, आपको पॉलिसीज़ का पता है, आपको
आपको ये भी पूछा जाता है ऑफिस साफ मिले या नहीं मिले. Who's going to be rated to the HR? Is compliance department? The new joiners. Right now I'm talking about the new hires. So I'm saying the new hires will rate HR कि HR ने हमें accommodate किया या नहीं, या HR सिर्फ ये भी बहुत important है. So and then the real success is कि उनसे रेटिंग लेकर भी सक्सेसफुल हो जाना, और अगर वो रेट कर दें तो हाँ, पर वो HR देखें करेगी भी तो वही रेटिंग कराएगी ना जो कंफर्टेबल भी होगी कि वो इस काबिल है, वो इतने कॉम्पिटेंट वो कराती है. मैं जिन कंपनीज की बात कर रही हूँ या जिन 2-3 कंपनीज के वो कराते भी इसीलिए थे क्योंकि बिकॉज दे न्यू कि दे वर गुड. Can you please name those organizations? मैं बताती हूँ, टेलेनॉर में भी कराते थे, कोका कोला में भी कराते थे, मेट्रो कैश एंड कैरी पाकिस्तान, 3 ऑफ द कंपनीज आई वाज पार्ट ऑफ सो मैनी ईयर्स. 3 कंपनीज तो मैं अभी आपको बता देती हूँ जो न्यू ज्वाइनर के, बाकी 2-3 थी वहाँ पे भी हमने शुरू कराई दिया था जाकर, लेकिन डेफिनेटली वहाँ पे वो इनहिबिशन ज़्यादा थे, हाय हम अपने आप को रेट कराएं. लेकिन मैं आपको बताऊँ जो ट्रांसपेरेंसी होती है ना इज़ ऑलवेज पेज वाली बात है. अच्छा जी, नेक्स्ट पे आ जाए. ये हमने हाँ, इसके अलावा ये है कि अगर आप बहुत ही उसमें जाना चाह रहे हैं कि आपकी यील्ड रेशो कितने, ये भी होता था कि जी 6000 CV आए HR ऑफिसर पोजीशन के लिए, उस 6000 में से आपने कितने उठाए, आपकी यील्ड रेशो कितनी थी, कितने इंटरव्यूज़ के. रिसेंटली जैसे छोटी एग्जांपल देती हूँ, एक MTO एक छोटी कंपनी में भी द HR, और ये मैनेजमेंट को बताना ज़रूरी है, कल भी मैं कह रही थी कि द HR मैनेजर इंटरव्यूड एंड शी देवर 100 एप्लीकेशंस को लिखा गया, 100 एप्लीकेशंस अराइव्ड, 100 CVs अराइव्ड, 100 एक जॉब ऐड के बाद CVs रिसीव्ड, 100 सिलेक्ट टेलीफोनिक कॉल्स गई आफ्टर स्क्रीनिंग, तो उसने टेलीफोनिक कॉल्स को 60 उसको लगा कि इस काबिल हैं, बाकी सारे डिस्कार्ड हो गए, उस टाइम पे एलिमिनेट हो गए रिसाइकिल बिन में. फिर 60 को में से 60 कॉल्स में कही गई, उनमें से उसको लगा कि 30 टेस्ट में पेयर होंगे, और ये भी कहीं डेटा शायद आ जाए मेरे अगर मैं डैशबोर्ड से कहा. 30 को टेस्ट किया गया, 30 से देन दे टुक आउट 10 फॉर इंटरव्यू, 10 में से 2 बंदे 2 MTOs रखे गए, और बाकी when this type of talent comes in and the management sees the process, the facts, the data. So this is for this half of today. So we'll carry on with the next half after the break.